Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will be starting with our geography chapter 2, that is contours. Contours, what are contours? That we will see further, but before that we must see contours definitions and formations and all that. In this video we will see that. Before seeing this video, I will recommend you to go to chapter 1 and revise that chapter, and if you haven't seen it on my YouTube channel, I will give you the playlist in the I button above. Click on that and then see chapter 1 of geography 10 Icse, and after seeing that come to this video again. Representation of relief features. Now relief features are the land features. Relief features are the land features, and these features are three-dimensional, and cartographers had a hard time putting this shape on a two-dimensional map. These are the solutions they found to put a three-dimensional on two-dimensional map. First is the Hatchos. Hatchos. These are short disconnected lines which follow the direction of the slope. In fact, Hatchos portray the direction in which water will flow down the slope over the surface if allowed to flow freely. Hatchos show that also अगर हमने पानी को फ्लो होने दिया फ्रीली तो वो कहाँ पे जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो भी हैचोस शो करता है. Now hill shading. These types of maps use the shading effects of light and dark areas. Light areas are gentle slope of flat areas and darker areas are the steep slope. जो लाइट शेडिंग करते थे, मतलब हिल शेडिंग करते थे वो लोग, तो उससे जो लाइट शेडिंग होती थी वो जेंटल स्लोप होता था और जो डार्क शेडिंग होती थी वो स्टीप स्लोप होता था. स्टीप मतलब एकदम ऐसे गिरने वाला. क्लिफ कैसे होता है, यहाँ से हम अगर यहाँ पे हैं तो ये एकदम स्टीप है, राइट. और जेंटल मतलब ऐसे, सपोज दिस इज अ माउंटेन, और जेंटल अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम धीरे धीरे आ सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे जेंटल होता है. और ये एकदम स्टीप है, राइट. स्टीप स्लोप एंड जेंटल स्लोप. तो लाइट एरिया जो था वो जेंटल के लिए था और जो डार्क एरिया वो शेडिंग में यूज़ करते थे वो स्टीप स्लोप के लिए करते थे. ये आपको ध्यान में रखना होगा. फॉर्म लाइन्स. Form lines, these are the type of dotted circular line that shows the pattern of the landscape without giving any details as to its height or dimension. These are form lines. You can see here. These are form lines. They are dotted and circle. मतलब dotted होते हैं और circle में dotted lines होते हैं. अब contours. What are contours? चैप्टर का नेम ही contours है, तो contours क्या होता है ये definition हमेशा आती है. So do learn it. Either in your first assessment or boards or pre-boards, anywhere it will come. So do learn contours definition. That is, contours are imaginary lines that join places having the same height above sea level. Contours imaginary line जो होती है, जो places को join करती है जिनका sea level height जो होती है वो same होती है, उन्हें contours कहा जाता है. So contours are imaginary lines that join places having the same height above mean sea level. ये definition आप 2-3 बार बोल के learn कर लीजिए. Types of contour lines ये भी हम देखेंगे. उसके पहले जो contours होती है वो brown color की होती है. They are brown in color and have heights written along them at intervals. उसके बाजू में ही उसकी heights लिखी हुई होती है हर एक contour line की. Okay, and they are brown in color. This also you must remember. Contour lines are the imaginary line joining places which have the same height above mean sea level. This definition again I have repeated so that you not भूल नहीं जाओगे आप. You will not forget. Contour mark 50 means that all places which are connected by it are located at a height of 50 meters. समझो एक सर्कल है, एक कॉन्टोर है और उसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, तो उसका ये मतलब होता है कि जो हाइट है 50 मीटर्स, उस वो जो भी कोई फीचर होगा उसकी हाइट 50 मीटर्स होगी, ऐसे वो इंडिकेट करता है. एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर डिपेंडिंग ऑन द यूनिट बेस, मतलब यूनिट के ऊपर वो निर्भर करता है. द कॉन्टोर लाइन्स आर शोन बाय ब्राउन कलर इन 2 ways. कॉन्टोर लाइन जो होती है वो ब्राउन कलर में 2 तरीकों से दिखाई जाती है. एक तो होती है पतली और एक होती है मोटी, मतलब थिक. एक तो होती है थिक ब्राउन लाइन्स एंड थिन ब्राउन लाइन्स. थिन मतलब एकदम पतली और ब्राउन थिक जो होती है वो मोटी होती है. ओके.
कॉन्टोर लाइन शो। अब कॉन्टोर लाइंस क्या क्या दिखाती है हमें? एक तो एलिवेशन ऑफ लैंड. द हाइट ऑफ अ कॉन्टोर इज इंडिकेटेड बाय फिगर्स इंसर्टेड इन अ ब्रेक इन द लाइन. समझो ये कॉन्टोर है. आई विल शो यू वन. सपोज नो हियर. सपोज दिस इज वन कॉन्टोर, दिस इज सेकेंड कॉन्टोर. इसमें जो गैप होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके वो लिखा हुआ होता है. समझो इसका है 400, तो ये 400 मीटर्स अबाउ सी लेवल है. इसे वो इंडिकेट करता है. अभी इसके अंदर भी कोई होगा तो इसके ये दोनों अंदर का जो गैप होगा वहाँ पे एक लाइन दी होगी और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे 350 ऐसे. मतलब ऐसे कॉन्टोर इंटरवल, मतलब वो भी हम पढ़ेंगे. पर उसके पहले एलिवेशन ऑफ लैंड भी वो दिखाता है, जो होती है हाइट एक कॉन्टोर की. वो दो लाइन के बीच में लाइन दे के लिखा हुआ होता है. नाउ स्टीपनेस ऑफ इट्स स्लोप, ये भी कॉन्टोर्स दिखाता है. व्हेन द कॉन्टोर्स आर वेरी क्लोज दे रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप. मैंने बताया ये जो होता है ये स्टीप स्लोप होता है. अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आप ऐसे डायरेक्ट नीचे गिर जाने की संभावना है ऑफ कोर्स. तो ये होते हैं स्टीप स्लोप. और जेंटल स्लोप वो होते हैं जो एकदम ऐसे ही जा रहे हैं. मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो आप ऐसे अच्छे से चल के आ सकोगे यहाँ से, राइट. सो ये होता है जेंटल स्लोप. और स्टीप स्लोप मतलब एकदम नीचे गिर जाने की ऑफ कोर्स संभावना है. When they are farther apart, they represent gradually increasing slope. अगर वो कॉन्टोर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं तो वो स्टीप स्लोप दिखाते हैं, मतलब ये वाला स्लोप दिखाते हैं. अगर कॉन्टोर्स ऐसे है, जैसे आई विल शो यू वन एग्जांपल. अब ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टीप स्लोप है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जेंटल स्लोप है. जो जहाँ पे लाइंस फादर अपार्ट है, यहाँ पे लाइन बहुत फार है तो वो जेंटल स्लोप होता है. और जहाँ पे लाइंस बहुत नज़दीक नज़दीक है वो स्टीप स्लोप होता है. एब्सेंस ऑफ कॉन्टोर लाइंस इंडिकेट्स दैट द लैंड इज फ्लैट. अगर कॉन्टोर लाइंस नहीं होंगे तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो जो लैंड है वो फ्लैट है. मतलब वो ऐसे स्टीप भी नहीं है, जेंटल भी नहीं है, एकदम फ्लैट लैंड है, लो लैंड है. वो कॉन्टोर लाइन जो होते हैं वो शेप ऑफ लैंड एट वेरियस हाइट ये भी दिखाता है. मतलब कॉन्टोर लाइंस इंडिकेट्स द शेप ऑफ द लैंड. कौन से शेप का लैंड है वो भी कॉन्टोर लाइंस दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल सर्कुलर कॉन्टोर्स हुज वैल्यू डिक्रीजेस इनसाइड रिप्रेजेंट्स अ लेक. मतलब अगर एक कॉन्टोर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्टोर लाइंस होंगे, राइट. समझो यहाँ पे 400 है, फिर यहाँ पे 380 होगा, फिर उसके अंदर के लाइन में 360 होगा और उसके अंदर के लाइन में 340 होगा. तो ये जो है 400 380 जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है वैसे वैसे इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. तो उसे लेक भी कहा जा सकता है क्योंकि वो सर्कुलर है. उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है अंदर जाते जाते इनसाइड, और रिप्रेजेंट्स अ लेक. वो रिप्रेजेंट लेक करता है, लेक रिप्रेजेंट करता है. नाउ व्हाट इज कॉन्टोर इंटरवल, ये भी डेफिनेशन आती ही है. कॉन्टोर इंटरवल मीन्स द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉन्टोर्स. कॉन्टोर इंटरवल वो होता है, मतलब दो कॉन्टोर लाइंस के बीच में जो इंटरवल होता है उसे कॉन्टोर इंटरवल कहते हैं. जैसे one thick contour shows the height 300 meter and the next thin contour depicts the height of 320 meter. The contour interval is 20 meter. How? Because thin line, जो thin contour है वो 320 कर रहा है, तो 320 minus shows the height 300 meter. thin वाला तो 300. 320 minus 300 will be of course 20, right? So 20 meter जो है इसका contour interval है. आप बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वो आपका कॉन्टोर इंटरवल होता है. और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. कॉन्टोर इंटरवल मीन्स द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉन्टोर्स. नाउ व्हाट इज वर्टिकल इंटरवल? Vertical interval, it is the vertical distance between any two contour lines. In most of the British Ordnance map, the vertical interval is either 50 or 100 feet. In 1:50,000 survey sheet of India, the contour interval is 20 meter. आपको ये याद रखना होगा, vertical डिस्टेंस होता है वर्टिकल इंटरवल दो कॉन्टोर लाइंस के बीच में. ये ज़्यादा तो ब्रिटिश ऑर्डिनेंस मैप ही यूज़ होता था, वहाँ पे इसकी
जो वर्टिकल इंटरवल थी वो 50 या 100 फीट थी, और आज जो हम सर्वे शीट इंडिया यूज़ करते हैं जो है 1:50,000 एंड 1:25,000, यहाँ पे सिर्फ 1:50,000 का बताया गया है। 1:50,000 की जो कॉन्टूर इंटरवल है वो 20 मीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्टूर लाइन्स दैट इज नोन एज वर्टिकल इंटरवल, दैट इज VI। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मीन्स HE, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी पूछा जा सकता है, VI मीन्स एंड HE मीन्स। Horizontal equivalent is the actual distance between 2 points on 2 contour lines. This is important. What is horizontal equivalent? Horizontal equivalent is the actual distance between 2 points on 2 contour lines. Now next, gradient. What is gradient? Gradient refers to the slope of land. Gradient मतलब जो land का जो slope है उसे gradient कहा जाता है. It determines the steepness of slope. Slope कितना steep है वो दिखाते हैं. Steep means I have explained you, all right? It is the ratio between the vertical height and the horizontal distance measured along the ground. ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें वर्टिकल इंटरवल चाहिए और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट चाहिए, ये दोनों होंगे तो ही हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है तो उससे पहले हमें वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ता है। वर्टिकल इंटरवल मीन्स VI एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मीन्स HE। इसको डिवाइड करने के बाद आपको ग्रेडियंट मिलता है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लैंडस्केप, यहाँ पे हम दिखाते हैं, हमें यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना है। अभी मैंने क्या बताया, ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें वर्टिकल इंटरवल चाहिए और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट चाहिए, मतलब VI चाहिए और HE चाहिए। तो पहले हम VI निकालेंगे और HE निकालेंगे, उसके बाद हम ग्रेडियंट जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक डायग्राम है आपके बुक में, पेज नंबर 14 पर आप बुक निकालिए और देखिए। ये है फाइंडिंग HI। फाइंड आउट द ग्रेडियंट बिटवीन A एंड B इन द पिक्चर। A एंड B इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर जो A एंड B है उसे हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो VI जो है मतलब वर्टिकल इंटरवल, इसका ग्रेडियंट निकालना है, राइट, AB का। सो दिस कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर लाइंस ऑफ प्लेसेस A एंड B। हमें A एंड B के जो प्लेसेस है उसका जो कॉन्टूर लाइंस का जो वैल्यू है उसे डिफरेंस करनी, डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा वर्टिकल इंटरवल होगा। जैसे वर्टिकल इंटरवल यहाँ पे होगा 400 minus 250, that will be 150 meter. Okay, 400 minus 250 that will be 150 मीटर। ये जो है इसका जो डायग्राम है वो पेज नंबर 14 पर है, वो ये वाला नहीं है, ये वाला मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। उसका जो डायग्राम है वो एक्चुअली 2.6 है जो पेज नंबर 14 पर है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। 400 है वहाँ पे बीच वाली लाइन और जो 250 है वो है उसके साइड वाली लाइन। तो A और B, A जो है वो 250 है और B जो है वो 400 है, आप देख सकते हैं। तो 400 मतलब B माइनस A किया है हमने, क्योंकि B बड़ा है तो ऑफकोर्स B से ही A माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो तब आता है अपना 150 मीटर। तो वर्टिकल इंटरवल आता है 150 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अब हमें रूलर की सहायता से हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। जैसे डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है AB 3 सेंटीमीटर है वो बुक में भी दिया गया है, आपको मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्केल 2 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर, दैट इज ऑल्सो गिवन, स्केल इज 2 centimeter is equals to 1 kilometer. Just refer that diagram, you will understood it automatically. अब आते हैं therefore HE means horizontal equivalent is equals to 1.5 kilometer or 1500 meter. 1 kilometer is 1000 meter. So 1.5 kilometer that is 1500 meter. अब आते हैं हमें कैलकुलेट ग्रेडियंट करना था, राइट, जो क्वेश्चन था वो यही था, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ लैंडस्केप। अब कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वर्टिकल इंटरवल इनटू हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। वर्टिकल इंटरवल हमारा आया है 150, सो 150 लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल इंटरवल आया है 3000, सो 3000 लिखेंगे।
तो जब ये कट हो जाता है तब हमें मिलता है 1/20। सो कैलकुलेट ग्रेडियंट जो है वो 1/20 है, मतलब 1:20, राइट। Thus the gradient between A and B is 1:20. अब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टूर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टूर्स, इसके कोई प्रिंसिपल्स है, इसमें से आपको पांचों भी लर्न करने होंगे, ये पूछे जा सकते हैं 5 मार्क के लिए। सो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टूर्स, दिस आल्सो यू हैव टू लर्न। contour line shows place joins places having the same height above mean sea level। ये तो एक आपकी डेफिनेशन ही है, सो डेफिनेशन लर्न करने के बाद आप वो प्रिंसिपल में भी लिख सकते हैं। contours आर कर्व लाइन्स। contour जो है वो कर्व लाइन्स होती है। ऑफकोर्स सर्कल है तो सर्कल कर्व ही होगा, राइट। whose curvature depends upon the configuration of land, they are never broken। वो कभी भी ब्रोकन नहीं होती, मतलब ऐसी नहीं होती, वो पूरी क्लोज होती है, पूरा सर्कल क्लोज होता है उसका। The spacing of contour lines indicates the nature of the slope। Of course, जो स्पेस होता है contour lines में वो उसका जो स्लोप है वो कैसा है वो इंडिकेट करता है। जैसे मैंने बताया, अगर contour lines पास पास हो गए तो वो स्टीप स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, और अगर contour lines दूर दूर हो गए तो वो जेंटल स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। Contours of different heights do not cross each other. However, contours come very close to each other to show the steepness of the slope or merge with each other as in a cliff। क्लिफ जो होता है वो बहुत स्टीप होता है, ओके, एंड जो ये होता है बाकी के जो जैसे माउंटेन्स होते हैं जिस पे हम चढ़ सकते हैं वो जेंटल होते हैं, वहाँ पे हम चढ़ सकते हैं। क्लिफ है वो बहुत डेंजर होता है। contour line either closes or itself on the map, or it begins at one side of the map and ends at another। In case of a ridge contour, lines run parallel to each other। In case of a valley, they point up still। ये ऐसे ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको याद रखना होगा। अ contour line either closes on itself on the map, or it begins at one side of the map and ends at another। यहाँ पे आप 5th वाला जो पॉइंट है वो लर्न कर सकते हैं, और ये पांचों पॉइंट आपको लर्न करने, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टूर्स, ये पूछा जाता है। Triangulated height। Now what is triangulated height? When the point has been accurately surveyed and shown with a triangle, it is called as triangulation point। जैसे आप ट्रायंगल देख सकते हैं, ट्रायंगल 340। सो ट्रायंगल देख के ही आपको याद होना चाहिए कि इसे हम ट्रायंगुलेटेड हाइट बोलते हैं। सो ट्रायंगल, ट्रायंगुलेटेड, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ट्रायंगुलेटेड हाइट जो 340 है, ट्रायंगल 340, दैट इज नोन एज triangulated height। वो हमेशा ऐसे लिखा हुआ होगा। The height of such a point is called triangulated height and is determined trigonometrically। वो जो ट्रायंगुलेटेड हाइट होती है वो कैलकुलेट भी जो लोग करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ट्रायंगुलेटेड हाइट मापते हैं, मतलब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द माउंटेन पीक्स आर इंडिकेटेड बाय ट्रायंगुलेशन पॉइंट्स। माउंटेन पीक्स जो होते हैं उसे भी ट्रायंगुलेशन हाइट्स के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ही उसकी जो ट्रायंगुलेटेड हाइट है वो मापी जाती है। अब आते हैं स्पॉट हाइट। व्हाट इज स्पॉट हाइट? इट refers to the highest of the point on the ground above the mean sea level। It is indicated on the map but not on a ground। ground पे वो नहीं इंडिकेट होता, वो सिर्फ मैप पे इंडिकेट होता है। It is represented by a dot followed by a number on the map। मतलब पहले डॉट होता है और उसके बाद कोई भी नंबर, मतलब जो हाइट है उसकी वो लिखी हुई होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल डॉट और 500, ये हो गई स्पॉट हाइट। ट्रायंगुलेटेड हाइट मतलब ट्रायंगल और एक नंबर, स्पॉटेड मतलब एक सर्कल जो डार्क है और नंबर, ये आपको याद रखना। The number shows the height above mean sea level of that place। A spot height gives information about the height of a specific point only। It gives no idea about the relief features like mountains, plains, plateaus, etc। So spot height ऐसे लिखी जाती है और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। It refers to the height of the point on the ground above the mean sea level and it is indicated on a map but not on the ground। अब आते हैं benchmarks। Benchmarks, these are marks etched on a stone or shown on a building to indicate the accurate height determined by surveys। जो surveyors है उन्होंने accurate height जो मापी है वो benchmarks के अनुसार दिखाते हैं। They serve as a reference for surveyors। A benchmark is written as BM। benchmarks का जो ये है सिंबल है वो BM है, आप याद रख सकते हैं। benchmarks मीन्स बी का, बेंच का पहला जो अक्षर है वो बी है और मार्क्स का पहला जो है वो एम है। सो बेंच मार्क्स BM एंड फॉलोड बाय नंबर, मतलब बेंच BM लिखा होता है और उसके आगे एक नंबर होता है।
The number indicates the height of the surface level at the mark point. There is a difference between spot height and benchmark. Spot height और benchmark में difference है. ये पूछा जा सकता है. What is the difference between spot height and benchmark? Spot height indicates only the height of the ground above mean sea level that is seen on a map, whereas benchmark indicates the height of some point marked above the ground and includes the height of the object on which a benchmark is etched. Thus, a benchmark is marked on both the map and the actual ground. हमने पढ़ा था कि जो spot height होती है वो सिर्फ मैप पर मार्क्ड होती है, ग्राउंड पर मार्क नहीं होती। तो जो बेंच मार्क होता है वो ग्राउंड पर भी मार्क्ड होता है और मैप पर भी मार्क्ड होता है। ये भी इसका एक डिफरेंशिएट बिटवीन आप कह सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट हाइट एंड बेंच मार्क। अब आते हैं रिलेटिव हाइट। Relative height. In areas of steep slope, the difference between maximum and minimum is represented by the letter R, which indicates relative height. R जो है वो represent करता है relative height. अब याद रख सकते हैं जैसे relative है तो R first letter है, so relative height. Thus, if one finds 3R dot or dot 3R written on a topo sheet, this means that the concerned place is higher than 3 meters than its natural lowest place. मतलब जो नेचुरल लोअर प्लेस है उसे 3 मीटर जो वो हाइट है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 3 मीटर अबव है। अगर 3R डॉट या डॉट 3R ऐसे लिखा होगा तो वो मतलब होता है रिलेटिव हाइट। A very big thank you to reach the end of this video. Next video we will see slopes, valleys and all this, and we will be seeing conventional signs and symbols in another video. Till then, subscribe to my channel and most importantly, please press the bell icon so that you will immediately get a notification whenever I upload my new video and you will be able to see that video very quickly. Till then, subscribe and like and press the like button if you really like this video and understood this concept. Thank you all.